Hello everyone. Today we are going to discuss chemical reactions of alkenes in detail. It will include reactions from 11th standard as well as from the 12th standard, okay? With JEE and NEET point of view. Now, first of all, if you see the structure of alkene is represented by C double bond C, out of which one is sigma bond and one is a pi bond, where pi bond is a weak bond. In a non-polar media, this pi bond will break through homolysis and form a free radical. Each electron will shift on the carbon atom. In the heterolysis, the pair of electron will shift on one of the carbon atom जिस पे reagent attack करेगा, undergoes heterolysis in a polar media to form a charged species. So basically, pi bond will break either to form a free radical or to form a charged species, that is a cationic and anionic carbon, because of which the reagent will attack either by free radical mechanism undergoing homolysis or by heterolysis, and there will be a formation of other compounds where double bond is broken up into a single bond compounds, and alkenes preferably undergoes a kind of a addition reaction. So basically the most important reaction of alkenes are the addition reactions of alkenes, where the pi bond is broken down. Either the addition of the reagent take place homolytically or the addition of take place heterolytically. In a polar media, it will be heterolysis at low temperature, where it follows electrophilic addition. In the non-polar media or heat or peroxide, it will undergo a free radical mechanism. Now, what are the type of the chemical reactions? So first you need to understand that it preferably undergo a kind of a addition reaction, where double bond get broken down and single bond is formed, and reagent is added across the double bond. Now, type of the chemical reaction, these are the type of chemical reactions. It includes free radical reaction, electrophilic, oxidation, ozonolysis. So we will cover all these reactions one by one. The first reaction you have seen in alkane is free radical addition of hydrogen across the double bond. If you remember, we have covered in alkane that C double bond C will add hydrogen across double bond in presence of rannan nickel or platinum or palladium as a catalyst, where hydrogen is being added across the double bond, it converts into a single bonded compound where you get an alkane. So this reaction involves mostly a free radical mechanism, where this pi bond is broken down and hydrogen is added across the double bond to form an alkane. Now the second type of addition reaction, very famous and very important for alkene, is electrophilic addition reaction. Electrophilic. Now we have two types of reagent, electrophile, nucleophile. Electrophiles are the electron loving species, and nucleophile are nucleus and a positive center loving species. Now every reagent which attacks alkene is made up of two things, electrophile and nucleophile. For example, if HX is attacking alkene, HCl, HB or HI, उसमें से H plus जो होगा will behave as a electrophile, X minus will behave as a nucleophile. If you add a halogen, it will undergo heterolysis, one will behave as electrophile, one will behave as nucleophile. So these positive charge species in this reagents, ये जो जितने भी reagents है ना, ये सारे alkenes पे add हो गए, जिसमें से जो पॉजिटिव चार्ज है वो पार्ट को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे और नेगेटिव को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे. क्लियर है? This will be HO minus, so this will becomes your nucleophile. Cl plus will become a electrophile. Water add करना है तो H plus becomes a electrophile. OH minus becomes a nucleophile in this reaction. Okay. So हर reagent एक electrophile और nucleophile से बना होगा जो double bond system पे अटैक करेगा. अब इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज आपने रिएजेंट लिया है लाइक HCl, तो इट हैज़ वन इलेक्ट्रोफाइल H एंड न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस. तो फर्स्ट दिस reagent will break to form electrophile and then a nucleophile is formed. तो पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है. अब क्वेश्चन ये कि आउट ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल विच विल अटैक अल्कीन फर्स्ट. तो अल्कीन बना है एक डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, बट ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. सो अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे अगर आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे तो वो भी नेगेटिव चार्ज है. इवन दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज नेगेटिव चार्ज, दे विल रिपेल, सो रिएक्शन नहीं होगा. सो आउट ऑफ द रिएजेंट विच हैज़ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, द फर्स्ट अटैक डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल ही करेगा, क्योंकि आपको नेगेटिव सेंटर को ब्रेक करना है तो आपको पॉजिटिव स्पीशी ही सेंड करना पड़ेगा. तो सपोज इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा है, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन, तो ये पाई बॉन्ड्स पे शिफ्ट हो गया.
तो सपोज पाई बॉन्ड इस कार्बन से शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। सी दिस इज द इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रोफाइल को मिल गया। ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो गई, सो इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन गया, कार्बोकटायन। सो व्हेनेवर रिएजेंट विल अटैक, इन रिएजेंट में से सबसे पहले अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या तो कार्बोकटायन बनेगा या तो फिर साइक्लिक आयन बनेगा। मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन फॉर्मेशन, या तो फिर देर इज अ पॉसिबिलिटी के विद दिस टू कार्बन अ इलेक्ट्रोफाइल इज अटैच साइक्लिक, साइक्लिक। इसके बनने के चांसेस है और ये बनने के चांसेस है, लेकिन अटैक पहले कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल HCl में अटैक कौन करेगा, H+। X2 लिया है तो X+ अटैक करेगा, H2SO4 लिया तो H+ अटैक करेगा, HOCl लिया तो Cl+ अटैक करेगा, वाटर लिया तो H+ अटैक करेगा। क्लियर है? इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक फर्स्ट। दिस विल बी अ स्लो स्टेप where there is either formation of कार्बोकटायन और there is a formation of cyclic ion। याद रखना ये दोनों स्पीशीज बनता है जब इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड सिस्टम पे अटैक करता है। दैट विल बी अ स्लो स्टेप, a rate determining step. Then after that, nucleophile which remains will attack the positive center with the electrons and the compound will be formed. Single bond will be, double bond will be converted to single bond, and if you see properly, E and Nu, electrophile and nucleophile both are added across the double bond. सिर्फ यही दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड से उसी पे ऐड होगा and they will form a product. अगर समझो यहाँ पर H होता और यहाँ पर Cl होता तो ये RX बन चुका होता, अल्काइल हैलाइड। क्लियर है? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि द फर्स्ट अटैक इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन विल टेक प्लेस बाय इलेक्ट्रोफाइल। दैट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें जितना कम सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ऑब्वियसली स्टीयरिक फैक्टर कम होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कम होता है। अब ये सारे अल्कीन्स में से दिस इज सपोज टू बी द मोस्ट स्टेबल अल्कीन, इट हैज़ 2 अल्काइल ग्रुप्स, तो ये डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, स्टेरिक फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो इसका रिएक्टिविटी नॉर्मली कम होता है। तो आउट ऑफ दीज अल्कीन द लेस सब्स्टिट्यूटेड वन विल बी मोर रिएक्टिव फॉर दिस रिएक्शंस। बट ये डिपेंड भी करता है कि कौन सा इंटरमीडिएट स्टेट बन रहा है। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन first attack will be done by electrophile, which will be a slow step in which there will be a formation of carbocation or there will be a cyclic ion, and the second attack will be definitely of a nucleophile in it. Okay, now let's see one by one the different types of electrophilic addition reaction. Okay, the first electrophilic addition reaction is addition of halogen X2. It can be F2, it can be Cl2, Br2, I2. of course F2 का reactivity सबसे ज़्यादा होता है। ये रिएक्शन हम लोगों ने मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑन एडिशन रिएक्शन पे उसके मैकेनिज्म पे वीडियो था। इसका मैकेनिज्म वहाँ पर पूरा प्रपोज है, दिया हुआ है, बट यहाँ पर भी मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। अगेन द सेम थिंग आई विल रिपीट फ्रॉम दैट सेम वीडियो, तो यू कैन रिकलेक्ट इट, यू कैन रिवाइज इट विथ मी। Halogen add करना across a double bond, so one halogen goes to this carbon, another halogen goes to this carbon, double bond single bond में convert हो जाएगा, so you get a structure X, single bond X, so you will get basically a vicinal dihalide, simple. Okay, now mechanism again same thing कि X+ ions जो मैंने वहाँ पर explain किया था pi bond system पे। first of all X2 लिया है हम लोगों ने, तो it will undergo heterolysis, entire electron pair suppose shift on this halogen, so you get a X+ and you get a X-, तो ये आपका बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। X+ will be called as हेलोनियम आयन। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल ही पहले अटैक करेगा। हेलोनियम मीन्स क्लोरीन है तो क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, आयोडीनियम, फ्लोरोनियम आयन। तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द पाई बॉन्ड सिस्टम एज पर द रूल, बट इस केस में जब वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है it does not form a normal carbocation, but it forms a cyclic structure where you have this plus charge on it, so it's a cyclic halonium ion. Now this cyclic halonium ion will undergo a breaking। जब सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप को याद होगा स्लो स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो बना है X- ये अटैक करेगा। कैसे? दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट ऑन X, इस कार्बन पे डेफिशिएंसी आएगी, X- आके C पे अटैक करेगा, यू गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, C विद X, C विद X। और याद रखने का, द हैलोजेंस विच आर एडिंग विल बी अ ट्रांस एडिशन।
मतलब हैलोजन सेम साइड से आके अटैक नहीं करेगा. अगर एक हैलोजन यहाँ से अटैक कर रहा है तो दूसरा दूसरी साइड से अटैक करेगा. वाई? बिकॉज यहाँ से अटैक करना एक बैरियर है. So that is why it attacks from the other side because of the cyclic halonium produced in the between of the in between. That is the intermediate form in the reaction. Okay, तो ट्रांस एडिशन होगा. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. मैंने ये सब चीज़ पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस लेक्चर के अंदर. सी प्रॉपरली. एडिशन ऑफ X2 इज वाया ट्रांस एडिशन. तो अगर आप सिस अल्कीन लेते हो तो ब्रोमीन कैसा ऐड होगा? ब्रोमीन विल ऐड इन सच अ मैनर कि एक ब्रोमीन यहाँ से ऐड हो रहा है, दूसरा ब्रोमीन ऑपोजिट साइड से ऐड होगा. सो यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस: CH3 CH Br C Br H CH3. देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री. ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हो गया. तो अगर इसका एक डी फॉर्म बनेगा तो ऑब्वियसली एक एल फॉर्म भी बनेगा लाइक दिस: CH3 C H Br C Br H CH3. and if you see both of them are mirror image of each other, मतलब ये दोनों को अगर आप बराबर देखोगे तो 50% डी फॉर्म है इसमें, 50% डी फॉर्म है और 50% एल फॉर्म है. दोनों इनैंशियोमर्स है और दोनों 50-50% बनेंगे चांसेस है. देयरफॉर दिस विल फॉर्म अ रेसिमिक मिक्सचर. ये मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको पहले ही. अगर आपने ट्रांस अल्कीन लिया तो ट्रांस अल्कीन में इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि दोनों ब्रोमीन ऑपोजिट साइड से अटैक करेंगे. So you will get this as a product: CH3 CH Br C Br H CH3. This will have a plane of symmetry, therefore it becomes a mesoform, optically inactive. तो in general for anti and syn addition of the reagent याद रखने का, अगर आपने cis अल्कीन लिया, वापस से ये चीज़ रिपीट करो. I have done this before in my electrophilic addition lecture. कि if you take a cis alkene and if you do syn addition, syn मतलब सेम साइड जो हाइड्रोजन में देखने को मिलता है. इफ़ यू रिमेंबर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड हम लोगों ने ये सेबेडियस एंडरसन रिएक्शन में देखा है. रैने निकल वगैरह यूज़ किया है जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है द सेम साइड. तो अगर आप सिस अल्कीन में कोई भी सिन एडिशन करोगे तो वो मेसोफॉर्म बनाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव. और अगर वही सिस अल्कीन में ट्रांस एडिशन करोगे, एंटी एडिशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांस, सो वो रेसिमिक देता है. अगर ट्रांस अल्कीन लिया और सिन एडिशन किया तो रेसिमिक देगा, 50% डी 50% एल. और वही ट्रांस अल्कीन में अगर आपने एंटी एडिशन कर दिया, मतलब ऑलरेडी ट्रांस है और उसमें ट्रांस एडिशन कर रहे हो, तो इट विल गिव अ मेसोफॉर्म. अभी एग्जांपल देखो, मैंने एक साइक्लो अल्कीन लिया, आई एम एडिंग ब्रोमीन टू इट. ऑब्वियसली ब्रोमीन ट्रांस अटैच होगा, एक ऊपर साइड जाएगा और एक नीचे आएगा. सी प्रॉपरली. तो 50% ये फॉर्म बनेगा, 50% ये फॉर्म बनेगा. दोनों एक दूसरे के देखो बराबर से दिखना, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है. इज अ मिरर इमेज. तो ये रेसिमिक मिक्सचर बन गए. क्लियर है. नाउ एडिशन ऑफ हैलोजन विद अदर रिएजेंट्स. अगर आप हैलोजन ऐड कर रहे हो तो सबसे पहला स्टेप होता है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हैलोनियम आयन. फॉर एग्जांपल मैंने अल्कीन में ब्रोमीन ऐड किया तो यहाँ पर बनेगा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन. अगर देखो सेकेंड फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो ये आपका E+ अटैच हो गया. और सेकेंड स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल. तो या तो आपका न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड हो सकता है, अगर आपने NaCl लिया तो वो क्लोराइड हो सकता है, अगर वाटर लिया तो वो OH-. सो दीज आर नथिंग बट दी न्यूक्लियोफाइल. सो व्हाट हैपन व्हेन यू ऐड हैलोजन प्लस डिफरेंट रिएजेंट. अगर आपने सिर्फ ब्रोमीन डाला है तो ऑब्वियसली Br- आके यहाँ पर अटैक करेगा. यू विल गेट अ प्रोडक्ट CH2Br CH2Br. लेकिन अगर ब्रोमीन के साथ यू ऐड NaCl तो फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन अटैक करेगा, सेकेंड स्टेप में NaCl का Cl- अटैक करेगा एंड यू विल गेट अ स्ट्रक्चर ऑफ CH2Br CH2Cl. इफ यू ऐड अ OH- तो पहले तो Br अटैक कर चुका है, अब सेकेंड स्टेप में OH- अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल. सो यू गेट CH2Br CH2OH. Clear? So this basically proves, what does it prove? कि in second step the nucleophile will attack and the first step definitely the electrophile will attack and you get a different product by using different reagent along with halogen. मतलब कभी आपको halogen के साथ में ऐसे different reagent भी मिल गए तो suppose for example Br2 plus NaCl मिला तो दोनों Br ऐड मत कर देना. You add one Br then you add Cl-. Br2 with H2O मिला तो Br ऐड करो और साथ में OH- ऐड करो, like that. So this was addition of bromine.
ट्रांस एडिशन. देन एडिशन ऑफ HX, ये भी हम लोग कर चुके हैं. एडिशन ऑफ HCl, HBr, HI, जिसमें हम लोग ने मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक पेरोक्साइड इफेक्ट देखा था. रिएक्शन क्या था कि आप HCl, HBr, HI ले लो, H गोज टू वन कार्बन, halide goes to another कार्बन. ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है. तो दिस इज E प्लस, दिस इज Nu. पहला अटैक कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल. सो इट फॉर्म्स CH, so basically it forms a RX. Okay, you can use any of the solvent directed here, acetic acid या तो फिर मिथिलीन डाइक्लोराइड, या तो डायरेक्टली HCl, HBr, HI को आप ऐड कर दो, बबल कर दो, बिकॉज दे आर गैस फॉर्म में रहते हैं, तो इनको ऐड कर दो. मैकेनिज्म, पहले कौन अटैक करेगा? H प्लस अटैक किया, सपोज ये कार्बन पे अटैक किया, दिस कार्बन, सो यू गेट CH. ये कार्बन पे क्या क्रिएट होगा? पॉजिटिव चार्ज, मतलब दिस बिकम्स व्हाट? कार्बोकटायन. नाउ इस रिएक्शन में प्रॉपर कार्बोकटायन बन रहा है, साइक्लिक नहीं हो रहा है, मतलब देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट. याद है रीअरेंजमेंट का लेक्चर? कार्बोकटायन सेकेंडरी से टर्शरी बन सकता है बाय हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, वो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है. फिर फर्स्ट स्टेप में X- अटैक करेगा एंड यू गेट अ स्ट्रक्चर CHCX. सो एडिशन ऑफ HCl, HBr, HI on unsymmetrical alkene will follow which rule? Marconic. It can also follow anti-Marconic या क्रैश में इफेक्ट, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ विथ मैकेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. बेंजोइल पेरोक्साइड लिया है आपने नॉर्मली रिएक्शन के लिए, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सो यू कैन रिकलेक्ट थिंग्स. डू यू रिमेंबर, मैंने ये भी बताया था कि ओनली HBr गिव्स एंटी मार्कोनिक, बिकॉज HCl का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है वो ब्रेक ही नहीं होता, और HI इतना वीक है कि ब्रेक होके I2 बना लेता है, वो ऐड ही नहीं होता अक्रॉस द डबल बॉन्ड. देयरफॉर ओनली HBr अंडरगोज दिस रिएक्शन. अब जैसे आपने HCl ऐड किया तो H जाएगा एक कार्बन पे, Cl ऑन द कार्बन, सो यू गेट अ प्रोडक्ट CH3, CH2, Cl. नाउ दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन. तो क्या करेंगे? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू कार्बन हैविंग व्हाट? लेस. हम लोग कौन सा रूल फॉलो करेंगे? मार्कोनिक. तो ये विल गेट टू प्रोडक्ट. I-C पे जा सकता है, HCH2 पे वन वे. सेकेंड वे ऑफ एडिंग I गोज टू CH2, H गोज टू CH सेकेंड वे. फर्स्ट वे मार्कोनिक रूल फॉलो करता है बिकॉज नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन फॉर मेजर प्रोडक्ट. सो यू गेट टू प्रोडक्ट्स CH3, CHI, CH3. 2 आयोडोप्रोपेन, ये आपका मेजर होगा बिकॉज ऑफ मार्कोनिक ऑफ रूल. एंड CH3, CH2, CH2I, ये आपका माइनर होगा एंटी मार्कोनिक, बट यहाँ पर मार्कोनिक फॉलो होता है. अब HBr डाल दिया, विदाउट पेरोक्साइड इट विल फॉर्म मार्कोनिक. तो Br गोज टू लेस, नेगेटिव पार्ट गोज टू लेस फॉर मेजर. सो यू गेट C Br, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 bromopropane. So this becomes major with respect to marconic, this becomes minor. But in a peroxide effect, if you remember, HBr does not undergo heterolysis, it undergo homolysis. यहाँ पर भी homolysis होता है, free radical mechanism होता है, मैंने वहाँ explain किया था, जिसकी वजह से it follows anti-marconic, and now again you get two products, 2 bromopropane and 1 bromopropane. But negative part of the reagent goes to carbon having more number of hydrogen according to anti-Marconic. तो according to anti-Marconic peroxide effect ये major हो जाएगा, ये minor हो जाएगा. ये हम लोग देख चुके हैं already. HCl, HBr, HCl peroxide effect में जाता है? नहीं जाता. तो if you add HCl even in the presence of peroxide, it will behave normally according to Marconic. Get two product, 2 chloropropane, 1 chloropropane, जिसमें 2 chloro major हो जाएगा, 1 क्लोरो माइनर होगा. वाई? बिकॉज पेरोक्साइड में HCl काम नहीं करता, इट विल नॉर्मली वर्क एज मार्कोनिक प्रोडक्ट. बट HBr ऐड किया तो अगेन 2 प्रोडक्ट, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, जिसमें ये 1 ब्रोमो मेजर होगा एंड 2 ब्रोमो माइनर होगा. सो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इन दिस कि HCl इवन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड यू विल राइट डाउन HCl हुआ या HI हुआ, आप मार्कोनिक प्रोडक्ट ही लिखेंगे. लेकिन HBr होगा तो वो एंटी फॉलो करेगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. लेकिन अगर पेरोक्साइड नहीं है तो वो नॉर्मल मार्कोनिक फॉलो कर रहा है. सिंस इन दिस रिएक्शन कार्बोकटायन, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है. मतलब अगर मैं HBr ऐड कर रहा हूँ इस अल्कीन पे, सो नॉर्मली आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि सर नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू कार्बन, इसमें मार्कोनिक फॉलो होना चाहिए, गोज टू कार्बन हैविंग लेस, यहाँ पर ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा. बट ऐसा नहीं होता इसमें. क्यों?
बिकॉज इफ यू सी द मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, सबसे पहले अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल H+। ऑब्वियसली H+ इसी कार्बन पे करेगा क्योंकि कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म होगा, विच विल बी सेकेंडरी। अगर H+ इस कार्बन पे करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, विच विल बी प्राइमरी। तो यू विल मेक मोर स्टेबल सेकेंडरी, लाइक H+ पहले अटैक किया तो CH3C, CH3H, सिंगल बॉन्ड CH प्लस CH3 आपका सेकेंडरी बन गया। फिर उसके बाद में सेकेंडरी से आप हाइड्राइड शिफ्ट दिखा सकते हो, नेबरिंग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, H- शिफ्ट, 1,2 शिफ्ट, ये मैंने एक्सप्लेन किया था, 1,2 शिफ्ट। सो इट फॉर्म्स CH3C, CH3, CH2, CH3। Why? To make a tertiary carbocation. Now this tertiary carbocation then add bromide to it and get a structure CH3C, CH3Br, ब्रोमीन आ गया इधर, CH2, CH3। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर कोई यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज रिटन एज CH3, CH, CH3, यू कीप एज इट इज। आपने क्या ऐड किया, ब्रोमाइड टू दिस कार्बन, मार्को ने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया CH3, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। वाई? बिकॉज in this reaction again I am explaining the same thing, it will form a कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन जो बनता है वो रीअरेंजमेंट दिखा सकता है, सिर्फ साइक्लिक कार्बोकैटायन नहीं दिखाएगा जो ब्रोमीन में बनता है, तो वहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस एडिशन ऑफ HX इज अगेन अ एंटी और अ ट्रांस एडिशन। मतलब अगर मैं HCl ऐड कर रहा हूँ इसके ऊपर, सी प्रॉपरली, HCl ऐड कर रहा हूँ अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड, सबसे पहले H+ अटैक करता है अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म, कार्बोकैटायन बनता है सेकेंडरी। अब ये Cl- जो है वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, बिकॉज दिस इज अ प्लेनर कार्बोकैटायन, आइदर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड। अगर ये साइड से अटैक करेगा सो यू गेट वन कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव है, देखो चारों डिफरेंट है। यहाँ से अटैक किया तो फिर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा, बट ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए, सो यू विल गेट 50% D फॉर्म, 50% L फॉर्म, एंड यू गेट अ रेसिमिक मिक्सचर। तो याद रखना, इफ HX is added across a double bond and if they form optically active compound, then that optically active compound will definitely a racemic mixture because of trans addition to it. Okay, now next reaction, this will be very helpful, 12th standard में आ जाएगा। next reaction हम लोग यहीं cover कर रहे हैं, so we don't do this in 12th standard. Addition of cold concentrated H2SO4 to form alcohol। अल्कीन से अल्कोहल बनाना है हमको, सो हम लोग इसको कैसा बनाएंगे, पहले रिएजेंट याद रखो। दिस रिएक्शन इज बेसिकली एडिशन ऑफ कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कोल्ड कंडीशन, हॉट नहीं, ज़्यादा उसको हीट नहीं करना है पहले H2SO4 ऐड करने पे, और कॉन्सेंट्रेट फॉर्म लेना है। H2SO4 कैन बी रिटन एज H+ and OSO3H, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको H2SO4 को। दिस H हैज़ पॉजिटिव चार्ज, OSO3H हैज़ नेगेटिव चार्ज। व्हेन यू ऐड अक्रॉस द डबल बॉन्ड, H जाएगा एक C पे, OSO3H एक C पे जाएगा। अगर ये अनसिमेट्रिकल हुआ तो आप क्या फॉलो करना, मार्कोनिक, मतलब नेगेटिव पार्ट को कहाँ डालोगे, ऑन द कार्बन हैविंग लेस। फिल वक्त मैं एक जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ, यू ऐड दिस, you form a compound CHCOSO3H, alkyl hydrogen sulfate. You heat this compound, now you heat it, now you boil it, after adding H2SO4 with water you boil it, so what will happen, देखो ये पार्ट यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, OSO3H with H, मतलब H2SO4 निकल गया, OH उसकी जगह पे आ जाएगा, so you get a structure CH, COH, बन गया क्या, अल्कोहल प्लस H2SO4। लेकिन ये जो H2SO4 आप यूज़ कर रहे हो, इट शुड बी कोल्ड कॉन्सेंट्रेट एट लो टेम्परेचर, अदरवाइज ये अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके वापस रिएक्शन रिवर्स कर देगा। आपने देखा होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो संभालना थोड़ा ज़रूरी है, इसके अंदर टेम्परेचर थोड़ा ज़रूरी है संभालना। बट बेसिकली ऐड क्या हुआ है, ऐड हुआ है वाटर। कैसे, पहले स्टेप में H और दूसरे स्टेप में OH ऐड हुआ, जहाँ से H2SO4 निकल गया। तो यहाँ पर H2SO4 का काम क्या है, एज अ हाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर ऐड करना। देखो H और OH ऐड हुआ टू फॉर्म अल्कोहल, मतलब नॉर्मली आप वाटर ऐड कर सकते हो रिएक्शन लिखते वक्त इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग H2SO4 कॉल्ड एज इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, मतलब पहले H2SO4 रिएक्ट करेगा और वाटर ऐड अप हो जाएगा,
मतलब H गोज टू वन कार्बन, OH गोज टू अनदर कार्बन. सो आप डायरेक्ट रिएक्शन ऐसा भी लिख सकते हो, CH COH अल्कोहल. लाइक अल्कीन पे मैंने ऐड करना है कॉन्क H2SO4. तो आप इस रिएक्शन को कैसा दिखा सकते हो? यू कैन शो द रिएक्शन H गोज टू वन कार्बन, OSO3H गोज टू अनदर कार्बन टू फॉर्म CH3CH OSO3H, ethyl hydrogen sulfate. Okay, then to this you add what? Water, HOH. you boil it, तो यहाँ से H2SO4 निकल जाएगा, OH उसकी जगह पे आएगा. सो यू गेट CH3CH2OH प्लस H2SO4. क्लियर है? अच्छा, प्रोपीन लिया है, एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है. मार्कोनिक रूल अप्लाई करो, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू कार्बन हैविंग लेस, तो H इधर आ जाएगा. So you get a structure CH3CH CH3 OSO3H, isopropyl hydrogen sulfate. फिर आप वाटर ऐड करके you boil it. So when you boil it, H2SO4 निकल गया, उसकी जगह पे क्या आएगा? OH. So you get a structure CH3 CHOH CH3 plus H2SO4. So this is the industrial method for preparation of ethanol. एंड द ओनली प्राइमरी अल्कोहल विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस मेथड इज इथेनॉल. बाकी सब आपको सेकेंडरी टर्शियरी मिलेगा क्योंकि मार्कोनिक रूल अप्लाई हो रहा है. सो याद रखना कि इसके अंदर आपको वाटर ऐड करना है अक्रॉस द डबल बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू विच रूल? मार्कोनिक. मतलब अगर इस रिएक्शन को मुझे डायरेक्टली लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 एंड बॉइल इट. So what will happen? देखो, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएक्शन OH गोज टू कार्बन हैविंग लेस, H गोज टू हियर, तो यू गेट अ सेम प्रोडक्ट जो अभी हम लोगों ने बनाया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. देखो यही बना है प्रोडक्ट सेम. तो डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो. बट इफ यू टेक अ हायर अल्कीन लाइक आइसोब्यूटिलीन ऑल, वाटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में भी. क्यों? बिकॉज हायर अल्कीन्स बीन मोर रिएक्टिव इन दिस केस. क्यों? अगेन इस रिएक्शन में क्या बनता है? कार्बोकैटायन. सो अगर मैंने हायर अल्कीन लिया जैसे आइसोब्यूटिलीन, डायल्यूट H2SO4 भी ये रिएक्शन कैरी आउट करेगा, कॉन्क की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो OH नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएक्शन गोज टू कार्बन हैविंग लेस, H गोज टू दिस, सो यू गेट अ स्ट्रक्चर. मेजर प्रोडक्ट विल बी टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल. क्लियर है? लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस. सो सबसे पहले क्या होगा मैकेनिज्म में? प्रोटोनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. Focus here. H2SO4 in water will produce H plus ions. This H plus ions will attack water to form hydronium. Actually में water में, acidic water में H plus होता ही नहीं है, hydronium होता है. But for the sake of simplicity, instead of hydrogen we write on H plus. अब ये हाइड्रोनियम आयन अल्कीन पे अटैक करेगा. क्या? प्रोटोनेशन करेगा, मतलब अपना प्रोटॉन H प्लस अक्रॉस डबल बॉन्ड ऐड करेगा. तो क्वेश्चन ये है कि प्रोपीन में कहाँ ऐड होगा? तो वही जगह ऐड होगा जहाँ से सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा. इफ दिस H प्लस अटैक्स ऑन द फर्स्ट कार्बन, पाई बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट होगा और H प्लस को मिलेगा. सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3CH प्लस CH3. देखो इसमें कार्बोकैटायन बन रहा है इस रिएक्शन में. ओके, दिस विल बी अ स्लो स्टेप. कोई बोलेगा सर सेकेंड पे क्यों नहीं किया? ना सेकेंड पे करता तो पॉजिटिव चार्ज इधर पे आता, प्राइमरी कार्बो